not a game, it's a rich thing. Hello everyone, welcome back to Saloni's Delight. I'm thrilled to be with you today for another insightful video that's sure to be a game changer for you guys. As the class 12 board exams are just around the corner, I've crafted a video covering all the crucial topics from each and every chapter of chemistry. My aim is to basically assist you in the best possible way to ensure you ace your upcoming chemistry exam. But before we dive into the fascinating world of chemistry, if you are new to my channel, please take a moment to hit the like button, share this video with your friends, and don't forget to subscribe for more content that promises to make your academic journey a delight. Now, let me provide you with a brief overview of today's agenda. I'll be diving into each chapter of the Class 12 chemistry syllabus, offering comprehensive insights and key takeaways. So grab your notebooks and get ready to supercharge your understanding of chemistry. Let's make sure you're well prepared for those upcoming board exams. Without further ado, let's jump right into the mind-blowing video. So let's go. Okay, guys. So first of all, let me tell you, you have to follow some general instructions which are mandatory for you to conduct your board exam. Okay. First, you have to read all the following instructions very, very carefully, and you have to strictly follow them because they are, of course, very important and mandatory for you. First of all, these question paper contains 35 questions. ठीक है, इसमें 35 questions होंगे total, and all questions are compulsory, as you know. This question paper is divided into 5 sections: A, B, C, D, and E. And in section A, सेक्शन ए में क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 18 मिलेंगे. 1 to 18 तक आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होंगे जो एमसीक्यूज होंगे बेसिकली, एंड दे विल बी कैरिंग 1 mark each. आफ्टर दैट इन सेक्शन 2, क्वेश्चन नंबर 19 to 25 आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे विच विल बी कैरिंग 2 marks each. हर एक क्वेश्चन का 2 marks होंगे, राइट. आफ्टर दैट इन सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26 to 30 आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जो 3 marks के होंगे. हर एक क्वेश्चन आपका 3 marks का होगा. Moving on to your section D. In section D, you'll find question number 31 and 32, जो आपके केस बेस्ड होंगे, एंड दो क्वेश्चंस है तो दोनों क्वेश्चंस के 4 मार्क ईच होंगे, विच मींस आपका 8 मार्क्स का डी सेक्शन होगा. आफ्टर दैट योर लास्ट सेक्शन इज सेक्शन ई. इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 33 to 35 आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, एंड दे विल बी कैरिंग योर 5 marks each. And let me tell you, there is no overall choice. You have to attempt all the questions. However, an internal choice has been provided in 2 questions in section B, 2 questions in section C, 2 questions in section D, and 2 questions in section E. दो क्वेश्चंस में आपको और के ऑप्शन मिलेगी बेसिकली. एक सेक्शन बी, 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे आपके ऐसे, 2 क्वेश्चन सी में होंगे, 2 क्वेश्चन डी में, 2 क्वेश्चन ई में. And obviously, as you know, use of calculators and log tables is not at all allowed in your board का exam. ठीक है? Okay, moving on to to our next slide, which is really important. एंड आई वांटेड टू टेल यू कि आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए. आई नो अभी इतना टाइम नहीं बचे कि आप हेल्प बुक से प्रिपेयर करो, लेकिन फिर भी इतना टाइम है कि आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट देख सको, या कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप उनमें से सॉल्व कर सको, राइट. सो यू कैन प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म विद सीबीएसई सैम्पल पेपर्स फॉर 12th बोर्ड एग्जाम फॉर 2024. एंड आई सजेस्ट यू, आप ओसवाल की गुरुकुल बुक्स जो हैं, ये तीनों ओसवाल की बुक्स हैं, आई सजेस्ट यू कि आप ये तीनों बुक्स रेफर करें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए. ठीक है, आपको इसमें 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे. पीसीएम स्ट्रीम के लिए भी, साइंस स्ट्रीम के लिए भी है, एंड पीसीबी प्योर साइंस की स्ट्रीम के लिए भी है. इसमें आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन के भी, कंप्यूटर साइंस के भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और जाने की नीड नहीं होगी, राइट. एंड ये जो मिडिल वाली बुक है, ये भी ओसवाल की ही बुक है. दिस इज योर सीबीएसई लास्ट ईयर्स 10 सॉल्व पेपर्स. अगर आपके पास टाइम है, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस बुक, बिकॉज इस बुक में लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं. ठीक है, तो आप ये वाली बुक्स रेफर कर सकते हैं फ्रॉम माई साइड. After that, moving on to, okay, so let's start with our chapters. So first of all, let me tell you from your chapter 1, solutions, क्या आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, हेनरीज लॉ है हमारे पास, इसके आपको लिमिटेशंस करनी है, एंड कुछ जो एप्लीकेशंस है वो डेफिनेटली आपको करनी ही है. ठीक है. अच्छा, इसमें एप्लीकेशंस जो है वो स्क्यूबा डाइवर से रिलेटेड आपका हेनरी लॉ आ सकता है ना, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है. राउल्ट्स लॉ की आपको प्रॉपर स्टेटमेंट आनी चाहिए. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है. मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है. एंड अदर देन दैट, आपका मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इन पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. ठीक है, तो आपको सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना है. आफ्टर दैट, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आपको इनकी डेफिनेशंस अच्छे से प्रिपेयर करनी है, एंड इनके कुछ एग्जांपल्स आपको अपने माइंड में रखने हैं, लर्न करने हैं. ठीक है. मूविंग ऑन टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज,
एज यू नो हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसमें से सबसे मेन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली है। वो आपको करनी ही करनी है इन चारों में से, क्योंकि इसमें से रिवर्स ऑस्मोसिस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, यू हैव टू डू इट। आफ्टर दैट वन हॉफ फैक्टर में से आपके 2 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ से पहला है आपका नॉन स्टिक क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं नॉन स्टिक क्वेश्चन में से। Conductivity and molar conductivity. Okay, so conductivity and molar conductivity, how they vary with dilution, ये आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पराश लॉ में आपको इसकी स्टेटमेंट करनी है अच्छे से एंड इसकी एप्लीकेशंस करनी है। ठीक है, बैटरीज पे आ जाते हैं हम। तो बैटरीज में प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज होती हैं। सेकेंडरी बैटरीज जो है इट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको सेकेंडरी बैटरीज करनी है। ओके, मूविंग ऑन टू फ्यूल सेल्स एंड कोरोजन। इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। ठीक है, तो आपके वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। मूविंग ऑन टू योर थर्ड चैप्टर विच इज योर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहले तो आपको इनकी डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड इसमें से क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस। सबसे मेन क्वेश्चन है जो मुझे भी अपने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया था। ठीक है, तो इसमें से डिफरेंस बन सकता है। मूविंग ऑन टू योर अच्छा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन आपको प्रिपेयर करना है। स्पेसिफिकली आपको रेट रिएक्शन आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ पे आपको डेरिवेशंस आएंगे, यू हैव टू प्रिपेयर दैट। एंड मूविंग ऑन टू योर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये भी आपको प्रिपेयर करनी है। लास्टली आपकी कोलिजन थ्योरी है, इसके 2 मेन पोस्टुलेट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। ठीक है, नाउ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये भी आपका काफी अच्छा चैप्टर है जिसमें से आई थिंक एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। ओके, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें से क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल कलर कंपाउंड्स है। ठीक है, वो कैसे बनते हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड, एंड आफ्टर दैट हाउ वेरिएबल स्टेट्स आर एग्जिबिटेड, है ना? तो वैसे वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आपको प्रिपेयर करना है इसमें से। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू KMnO4 K2Cr2O7 प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। अच्छा, इन दोनों की आपको प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज आपको प्रिपेयर करनी है। लेट मी टेल यू, इनिशियली दिस टॉपिक वाज डिलीटेड, बट अब ये टॉपिक वापस आ चुका है एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट, जैसे कि आपको बाकी के सारे टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको नॉमेनक्लेचर करना है, विच इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो। एंड आफ्टर दैट VBT एंड CFT। ओके, तो इसमें क्या है ना कि VBT ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं मानती हूँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी बन जाते हैं क्वेश्चंस, VBT पर आपको करनी है। ठीक है, दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आफ्टर दैट आइसोमेरिज्म आपको प्रिपेयर करना है इसमें से। ठीक है, आइसोमेरिज्म वो टॉपिक वाज आल्सो डिलीटेड अर्लियर, बट ये टॉपिक भी वापस आ चुका है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना ही है। नाउ मूविंग ऑन टू योर हेलो एल्केन्स एंड हेलो वेरिन्स। ये आपकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉमेनक्लेचर अच्छे से करना है, सारी नेम रिएक्शंस को अच्छे से रट लेना है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले। ठीक है ना, मार्कोनिकोव रूल आपको अच्छे से करना है। अच्छा, नॉमेनक्लेचर और ऑल नेम रिएक्शंस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से जो मेन रिएक्शंस है वो आपको सारी कर लेनी है। रिएक्शंस कैन बी डेफिनेटली आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शंस जो होती है ना वो एज इट इज आ जाती है, तो आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल जो आपने +1 में भी पढ़ा है, तो आपको ये दोनों रूल्स आने चाहिए। ठीक है, ग्रूव्स प्रोसेस में से क्वेश्चन बन सकता है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड आपको प्रिपेयर करना है। लास्टली BP एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इनके इनके ऊपर बेसिकली रीजंस पूछ सकते हैं। ठीक है, कि वो सॉल्युबल क्यों है ज्यादा, उसको बॉइलिंग पॉइंट क्यों है ज्यादा। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स में से आपको प्रिपेयर करना है। SN1 एंड SN2 पाथवे आपको प्रिपेयर करना है। हेलोरीन्स लेस रिएक्टिविटी, ये आपको प्रिपेयर करना है। इफेक्ट क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट्स पे, ये भी करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना? इसमें आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको प्रिपेयर करना है। पॉलीहाइड्रोजन CHCl3 आ जाते हैं, इसमें फ्रीऑन्स आ जाते हैं, BHC आ जाते हैं, DDT आ जाती है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट DDT में से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, तो आपने ये करना है प्रिपेयर हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स में से। ठीक है, नाउ अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर में चले तो सबसे पहले तो आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है अल्कोहल की, ठीक है, वो वाली रिएक्शंस करनी है। डिहाइड्रोजनेशन करनी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करना है अच्छे से प्रिपेयर, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये रिएक्शन आती है पेपर में। एल्कीन्स की रिएक्शंस करनी है, पर मेंटाटिक की रिएक्शन भी करनी है। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट करना है, सॉल्युबिलिटी करनी है, एसिडिक डिहाइड्रेशन भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अच्छा, अब ल्यूकस टेस्ट एंड विक्टर मेयर्स टेस्ट, ये आपको टेस्ट्स करने हैं एज इट इज प्रिपेयर। एंड ल्यूकस टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक है। तो ल्यूकस टेस्ट तो आप करना ही है, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी आएंगे। एसिडिक नेचर आपको करना है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। फिनॉल वर्सेस अल्कोहल का आपको प्रिपेयर करना है कि वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है ना। राइमर टाइमन कॉल्बे कॉल्बे की रिएक्शन जो है वो आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ये जो रिएक्शंस है ना वो एज इट इज ही आएंगी। आपको बीच में या तो फिल इन द ब्लैंक दे देंगे, वो मतलब काइंड ऑफ एक ब्लैंक बना के दे देंगे, एंड ये यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी होगी, आपको ब्लैंक बना के दे देंगे। फिर आपको एक रिएक्शन लिखी होगी, फिर आपको एक ब्लैंक बना के दे देंगे, तो आपको अच्छे से याद करनी है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, रोजनमंड्स, स्टीफन्स, गैटरमैन कोच, ये सारी आपको प्रिपेयर करनी है। ओजोनोलिसिस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, HCN NH2 डेरिवेटिव्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। टॉलेंस टेस्ट आपको प्रिपेयर करना है, फेलिंग्स टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, एंड डैम श्योर आपने ये अपने प्रैक्टिकल्स के लिए भी प्रिपेयर किया होगा, तो आपको ये सब भी प्रिपेयर करना है। क्लीमेंसन वुल्फ किश्नर की रिएक्शंस जो है वो आपको प्रिपेयर करनी है। इसमें से क्वेश्चन आता है एल्डोल क्रॉस एल्डोल कैसे हो रही है, पूरी टोटल हर एक रिएक्शन, नेम रिएक्शंस जो आपका लर्न करना, अच्छे से प्रिपेयर करना, आपको करना ही है वो, ठीक है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नाउ मूविंग ऑन टू योर एमीन्स चैप्टर। एमीन्स चैप्टर में आपको हॉफमैन एमोनोलिसिस एंड ब्रोमाइड रिएक्शन होती है, वो आपको प्रिपेयर करनी है अच्छे से। एंड रिडक्शन ऑफ NO2CN कैसे हो रही है, ठीक है, वो आपको प्रिपेयर करनी है। गैब्रियल थैलामाइड की रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है आपकी, ये आपको आनी चाहिए, कार्बाइल अमीन, है ना। तो ये आपको प्रिपेयर करना है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। बेसिक नेचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अमीन्स में से ये करना। अमीन्स में से और देखें तो डायो एजोटाइजेशन की रिएक्शन भी आ जाती है पेपर में। एनिलीन डजंट गिव फ्रीडर क्राफ्ट्स रिएक्शन, एक्सप्लेन, आपको ऐसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको करना ही है, ये आता ही है, ये क्वेश्चन 100% लिख के ले लो कि ये क्वेश्चन आता आएगा ही आएगा एक्सप्लेन करने में, 2 या 3 मार्क्स में, ठीक है। कपलिंग रिएक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। सो ये सिंपल सिंपल रिएक्शंस है, आप ये प्रिपेयर करनी है आपको ये, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू योर लास्ट एंड फाइनल चैप्टर विच इज योर बायोमोलिक्यूल्स। इसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट्स में जो भी रिएक्शंस है ना, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, सुक्रोज की, माल्टोज की, स्टार्च, ग्लाइकोजन, वो सारी रिएक्शंस आपको लर्न करनी है। मतलब ये तो कम ही आती है फिर भी, बट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज की रिएक्शंस जो है वो आ जाती है पेपर में, तो वो भी आप प्रिपेयर कर ले। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे को बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी याद है, वो मेरे को 1 मार्क में आया था। हमें क्या करना था कि हमें स्टार्च और ग्लाइकोजन में हमें डिफरेंस बताना था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो आप ये भी अच्छे से प्रिपेयर करें, आपको पता होना चाहिए वो है क्या, तभी तो आप लिख पाओगे ना पेपर में। आफ्टर दैट इनवर्ट शुगर, म्यूटा रोटेशन, ये आपको प्रिपेयर करना है, ये आपको पता होनी चाहिए क्या है, क्या चीजें हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें आप 2 to 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने पेपर में। प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये आपको सब पता होने चाहिए एंड आपको प्रिपेयर करना है। अमीनो एसिड्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स, ज्विटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये सब पता होना चाहिए, ये इनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, कैसे अलग हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स पता होनी चाहिए, विटामिन्स पता होने चाहिए, न्यूक्लिक एसिड्स में से बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड्स में से आपको न्यूक्लियोटाइड्स पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आप अपने माइंड में रखिए कि ये आ सकता है। Okay, so that's all for this video, and I hope you like my video. And if you did, please don't forget to like, share and comment on my video. And अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी कि मैं CBSE बोर्ड पे क्वेश्चन पेपर पे, फॉर एग्जांपल अब मैंने केमिस्ट्री पे के मेन टॉपिक्स पे वीडियो बनाई, अब मैं नेक्स्ट आई ट्राई कि मैं फिजिक्स के मेन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। अगर लेकिन आपको किसी भी रिलेटेबल टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।